Sri B.S. Yadav for giving such wonderful opportunity and to share a philosophy of objective organic architecture. And also, I would like to, I'm very grateful to Sri Sanjay Yadavji, who was very selective and choreographed this talk between Kamal Khan Jain sir and uh, Sri Sukatme sir and me. So this I'm very lucky to share platform with them. So with this, I will like to start my presentation. Um yeah. So the so my journey actually started with uh, like when I took architecture not as a choice but as a chance. I have no idea about this field before, but once I joined this architecture, I was so much frustrated and I felt so boring for me when I passed through all regular academic curriculum and I was thinking to leave architecture. But when I first entered library of architecture, I have encountered one book, Falling Water, which has deep impact on me. And from then onward, I'm a big follower of Frank Lloyd Wright. You will see the center Frank Lloyd Wright and his apprentice, and then you'll see Nari Gandhi also standing next to him. So these two are the prominent figure and my guru who has actually inspired me in this organic architecture quest. So I happened to meet one student, Venkat Pillai, and he was a student of Nari Gandhi. He worked under Nari Gandhi briefly, and I was his apprentice, working under him for three. Hello, am I Yes, audible? yes, sir, yes, sir. Yeah. So when I was working under Venkat Pillai for 3.5 years, I got an opportunity to see two of Nari Gandhi's structure, and that actually changed my whole life. If you this is the two structure like Gobai Mountain Lodge in Tungarli, Lonavala, and another one is uh, Teja Tejani Metro Shoes Bungalow. Now these two houses were sitting next to next. The first house Nari Gandhi made in India when he just left Taliesin, and when he entered India, he made that house. And this Tejani house, Metro Shoe house, is his last project. So it is like a one circle of Nari Gandhi. Like he made the first house and the last house next to next. Now this, when I saw this house, it was like a metaphor of origin. Like everything, every entity was designed in was designed as if it existed new in this earth. The house was not like a regular house; it just seamlessly merged into nature. And this idea, and when I saw this architecture, I felt that I should not leave architecture, and this has inspired me. And from then onward, there was a quest to know organic architecture, to know objective organic architecture. Now I will start the presentation of actually what is organic, objective organic architecture. So if you see, like these are the doctrines or these are the quotes which they have sum up into one line their style. So Sullivan started saying that the function follows form, and Wright later on followed as form follows function. And when Frank Lloyd Wright, after he being more enlightened through his work, he has come to a conclusion that the form and function are one. So later Nari Gandhi started promoting Lao Tzu's philosophy that the reality of the architecture is the space within, and the Bruscoff saying the ultimate thing, like the reality of architecture is the space within and also the space without and the medium defining space. It is inclusive of everything, the space within, space without, and the medium, the material. So these are the some of the quotes which they have sum up their whole architectural practice into a line. Now my quest towards objective art form. Now what is objective art form? See, there are two types of art. Actually they are subjective and one is objective. Subjective art comes from an artist with an emotion, with an emotion
whatever emotion he goes through, he do that. That is subjective kind of art. But objective art is something which with a controlled mind, with an objective to for the with not flown with the emotion, but what the prime objective, following the prime intent. If you see any art form that evokes a meditative state in an observer is an objective art form. Now, to make this very clear, I will go through some example what I have experienced. Like if you see this Rocket architecture in Karnavla, when I observe this space, you will see that uh, the one who has designed was so meditative that he had the whole design in his mind before. So what he was doing, he was scooping the unwanted rock to get the desired space between the stupa and the cave. This desired space, the voidness, the nothingness between the stupa and the cave, that touches your soul. That makes this art very spiritual. What is seen aesthetically pleases your physical body. What is touching your soul is the space, that the void which is created within or between the stupa and cave. So this is a currently you will also fall into a meditative space. Now the second thing which I observed is um, when Michelangelo sculpted, when he was 23 years old, he sculpted Pieta, and and in his later years of life, just 1 year before his death, he also sculpted the same topic Pieta at 72 age. Now, when you see these two sculpture, the first sculpture is more about the external beauty, the mastery over the surface. You will see that the foil, the marble, the clothing, everything is to the perfect. But he was towards the external beauty. But when you see the second thing, he was sculpting the soul. So the expression in the second sculpture is more powerful than the first. So this kind of art, the second one, which is the mature and meditative art, this is an objective art which comes out of soul and touches your soul. Also, if you see this form, if you sit in front of Buddha, if you sit in front of Mahavir, if you sit silently, something in you will become silent, something in you will become peaceful, and you will fall into meditative state. Now, why this happens? Because the emotion which is like this art form were made because both are emoting the same feeling of peace, and that's why they are looking same, and that creates a certain state of mind in your certain state of mind. Now you cannot make difference between Buddha and Mahavira. There is no difference because the both expressions are same. Both wanted to spread peace, so the look is also same. You will only see that to make differentiate between Buddha and Mahavir. The robe, you can see the robe in Buddha statue, and you will see no clothes in Mahavir statue. But in Mahavira also, in Jain also, in 24 Tirthankars, you cannot make out which Tirthankars is what. You will only make out with the symbol which is there on the chest, carved on the chest. So why this all Tirthankars look same? Why Buddha and Mahavir look same? They looked same because they were emoting same feeling. They were like a code language. It was for people, like people, they cannot go through a tedious meditative state. So just sitting in front of this idol make them peaceful. Similarly, Kali, if you sit in front of the statue of Kali, something in your mind will become violent to destroy some bad, to destroy some evil. So these are all code language. These all art are code language to create, to evoke certain state of mind in the observer, and that is objective art form. Now, suppose if one more thing, like if you sit in full moon in front of Taj Mahal, and if you sit and just meditate, and you will just fall into some different state, you will get transposed into the higher plane. You will become more meditative. Now, this Taj Mahal is not a tomb. Actually, it is an instrument to make you meditative. So why it is like that? Because it was made with that intention. It was consulted with the Sufi, and that's why this kind of art is very spiritual, and it evokes certain state of mind. And my quest is to understand this state of mind and how I can implement in my architecture. So why this happen? There's a science behind it. It is law of resonance. Whatsoever you see echoes in your
echoes in you, echoes in your mind. Suppose you are looking at a rose, you will feel beautiful. Suppose you are looking a beautiful girl, a beautiful lady, you become happy. You see a beautiful structure, you become happy. Whatever beautiful you see, you become happy. Why is that? Because that geometry is instilled in your mind. The geometry is instilled in you, and that makes you happy. If you see something crooked, if you see something ugly, you feel very bad because the geometry is not good. The geometry is not resonating with your geometry, and that's why you feel bad. So this is a law of resonance. Suppose that is what, when you see flower, the geometry is instilled in your brain, and that's why you feel uh, that's why you feel the beauty. When you see beauty, you feel beauty. That is objective art, and that is the science behind it. Now, what happens when an artist is making his art form? What is he actually doing? He's transposing his thought vibration into a form vibration. So he's transposing that. And when the artist is no longer standing there, when he is no longer present, the whatever art form that artist has made continues to create that vibration to all the future generation, the same sentiments and same feelings and aim of bygone era. That means if you see that painting, you will get into that artist state of mind. That is the science behind how the vibration works between an art form and an observer. So it is also true with architecture. With what state of mind architect makes an house, the same vibration is always uh, it always correspond to the observer. So if you look at these paintings are made by Picasso when he was in depression. These paintings are during the blue period, when he was in depression, his friend suicide, and he was experimenting in bluest blue. All his painting in this 4 years were all bluest blue. So what is this? When you look at this painting, if you look at this painting and meditate in front of it for some time, or for some days, you will also get depression. That is what you will feel. That is the transformation of energy from the painting to the observer. But if you see, this art form, if you see uh, Mona Lisa, or if you see any Van Gogh's painting, you will feel happy, you will feel something nice, because here the geometry, the harmony is instilled in your brain. What is the difference between two art? See, the first art, they are just putting their frustration into the painting, and that is what you are seeing it. In the second art, though Leonardo was very frustrated throughout his life, but when it comes to work, it was his objective intention towards the perfection. Though Van Gogh was frustrating throughout his life, but whenever it came to his work, it was the objective intention to make the drawing. So when you see such drawings, when you see such paintings, you get an uh, objective feelings. It evokes an objective uh, feelings in it. So there is a difference between two art, the subjective and objective art, in short. So now what and how should do? Now how should follow a principle of reflection? How should be like a mirror? It should reflect my filter. What I try to put it in my structure. Now generally there are three types. See, they have extrovert is the people who are only focusing their energy and they're focusing their energy and their all uh, interest toward the outer world. They don't have center, they are only into events, they are only things. So this extrovert personality is called as extrovert personality. Now than the extroversion, we term them as introvert. Basically, every person has both the quality, and if it is balanced, if it is counterbalanced, then we termed as normal person. So generally, these are the personality which we see in man, and I try to put this kind of personality in house so that it resonate with the occupant. Now, if you see the extrovert personality, they are
They are like towards money, sex, power, name, fame. They are only worried about the events, prestige. Their energies is with the people. They get drained when they are alone. So all this is what, this is all centrifugal force from the center to the outward. They are more worried about the periphery, the outer world. So similarly, the structure also has that character. The houses which spread from center to out towards the light at the periphery and then merges into the nature. This kind of spaces is the extrovert spaces. Now this character is there in the house. These are the houses which has this extrovert character. We can go through it. Now this is all having an extrovert character which resonate with the occupant character, which resonate with the occupant's personality. These all houses are extrovert by nature. It try to become seamless with the nature. It try to merge into the immediate context. Now another. Now the introvert personality. The introvert personality is different. They have the centripetal force toward the center. They show their back to the surrounding. They are not worried about external things. They are more into abstract ideas. They are more into their own ideas and privacy, their own feeling. Okay. So this kind of thing is also expressed in architecture. Like generally we have a central lights volume, light filled spaces. Whole orientation is toward the center. It shows us back to the surrounding, and the force of gravity is to nature at the center. So this kind of house personality is an introvert personality. Now in this house, it's a mixture of introvert and extrovert. The house is introvert, but as it goes near periphery, it just explodes. So it's a balance between extrovert and introvert personality. This is an extrovert dwelling with introvert landscape. The landscape it had introvert, like it is only surrounding with this Palmyra palm tree, the house. It has only that thing. So it has an introvert landscape with extrovert house. Now, why we should do that? Why we should reflect the man's personality in house? I would like to tell you that suppose a man, generally a house has a capacity to mold man's ego. The spirit of the house has capacity to mold man's ego. If there is a door and if you make the door little smaller and you ask man to pass from it, it will hit his head. It will hit his head once, twice, thrice, and then after fifth or sixth time he will bend and go. That means the man's ego is bending with the personality. He will start bending and moving from that house. He gets attuned to that, and even if you make the door bigger, he will bend and go. That's how the spirit of the house molds man's ego. Now generally what we do, you have to just analyze, like if your personality, if your client's personality is extrovert and if you want to increase that extrovertness, you resonate that house more extrovert and it resonate with it. If you want to subdue his little personality and make it little, you can give the opposite house. Initially he will not like it, initially it will be a conflict, but later on he gets subdued with that and he get attuned to it. So you can balance extreme extrovertness to by giving an introvert house, and that kind of thing you can balance depending on what is required. Okay, so another law is that the law of harmony which I follow. House should be like a water, it should just flow and blend into nature. Okay, so you will see all the houses, it just appears as if it is growing from the side and it is harmonizing with the nature surrounding. And this kind of architecture doesn't follow any style. I believe that style always have a doctrine which is a limitation. The organic architecture is not a style, it is not a trend. It is, that is why it is timeless and it is enduring, it is natural, it doesn't have any rules. You have to evolve with the context, and the and holistic approach is what is followed in organic architecture. See, you can see the correlation of the site. You will see the gentle slope is shown in the roof, and the flat side is reflected in the horizontal line here in the second picture.
The simplicity and repose should be the measure of art form. A space should induce a sense of tranquility. A form should express the true nature of material, the honesty. See, house is like a man. If you have an honest house which shows honesty everywhere, the man staying in that will also show honesty. It is like resonating that feeling. The usefulness of the pot comes from its emptiness, a Lao Tzu philosophy. It's very true. Like you throw clay into a pot, and where there is no clay, that is the utility of the pot. Very nicely said. And he only gave the basic principle of organic architecture, that the reality of the space is the space within. Reality of the architecture is the space within. Ancient methods are actually can be reused, because see, the geometry is very important of the house, which get instilled in the mind. So the structure, the nature of material, the geometry, the technology should go all hand in hand to arrive a built form. The house takes the shape like water, like it takes the shape of the context. So it is like water. How water takes shape of a cup, or how it takes shape of a bottle or a teapot. The house should take shape of a context like a water. It's a Bruce Lee's philosophy. Now it echoes the philosophy of it, like it evolving the response to the context, and interacting with the surrounding. Like it has to merge with it, and it, see what happens when your house merge into nature. See, house is like a self. You make house as a self, and when you merge the house in nature, man that man to a meditative state. Now, this the art form of man is something within man. If man is strong, the art form is strong. If man is weak or declined, the art form declines. House is a reflection of man's self. Now, I coined this word spatioform. For me, space and form are inseparable. They are two sides of single coin, and that's why the word spatioform, it is inseparable. It's a one word for me. And spatioform is objective art form. Now, in short, I would like to summarize, like our aim is to make man and nature unison. In organic architecture, nature becomes the prime attribute. The nature of the site, the nature of topography, the nature of climate, the nature of material use, the nature of intention, the nature of man, all inspires its built form. So I will just like to summarize this whole my approach toward objective organic architecture. Like this quote which I've written is like, in flute, air gets transformed into melody. You pass air into a flute and you get a melody. In man, words get transformed into a song. You pass words in man and song will come. Similarly, an art form, similarly a house should have a quality to transform man to a higher plane of being. Thus, the flute, the man, and the art form or the house are instruments for spiritual transformation. And with this, I would like to finish my talk, and I would like to ask Sri Sukatma sir to take over this talk. And thank you. Can you all hear me? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Can I start directly, or Roshan, Yes, you sir. want to speak in between? Yeah, Mahesh sir, would like to first of all thank you for the insightful and very, very enriched session, Thank you. and that gave us a lot of insights into various aspects of architecture. Now, I would like to request Sukatma sir to please go on. Sir. Let me make Yes, an sir. appraisal of your work. Thank you, sir. It was good, very catchy and flashy work. If this would have been said to me for thesis work, you would have got more than 80% marks, 100%. Okay. Thank you, sir. And the thing is, like, well, you spoke a lot of theory in between. You spoke of spirituality, you spoke of introvertness, extrovertness. All this fine at its place. But I basically feel art and design, these two are different things.
in art, like Kamal Kanji, whatever now I will be explaining about him, he has not to bother about the acceptability of his work to the society. You like it, you don't like it. As you had very clearly said, the vibration he puts into that thing and then it radiates again the vibration. This was a good theory, I liked it. I will, with your permission, I will quote that analogy somewhere, Great, sir. okay? Quite interesting. And, but I would have liked, for example, I don't know how many are architects here or how many are civil engineers. Some plans, if you would have added, for example, plans of those structures, because generally the geometry which you select has to take the automatic shape on it. Yes. Basic plan or basic two-dimensional platform has to be capped with the form, that So shape of I would the like to tell inside. you, Yeah, 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 I would like to tell you why I purposely chose not to take that. Like it would have been a little big session again. There are two aspects while designing. That is one controlled mind and one is natural instinct. Controlled mind is like what a planning takes. See, a contextual design, how climatically you have aligned the house and this and that is very technical, and that is good for an architecture. Like the instinct, the natural instinct. So natural instinct is not covered. So I wanted to show that. So technical and that part I didn't want to cover this because it is like the philosophy which drives the house more. So that's why purposely not talked about the technicality, the geometry, because it will take the another one session. It is still deeper. Like to achieve the geometry with the intent, with the client's requirement and the context fully, is totally different. So fully that's why. agree. Thing is like I'm being teaching also. So everybody is in very good in philosophies. People write poems. People write fantastic literature. People Yeah. they do whole lot of philosophical thing. But if they want to convert that into geometries, there is a whole Yeah. lot of inertia, which you have broken 100%. You don't have in India. And I find like whole Nari Gandhi, as if his buildings I am saying, it was so texturous, fantastic shapes, very good colors, and I can call you a FL right of Panvel Bai. How do you like it? So is my God. I will like But it. in Panvel, you have spread it. Yes. Now, Roshanji, I'll start with what I'm going to do about. Yes, sir. You're welcome, sir. Please go ahead. कमल कांत जी, ये आपका शो है और मैं आपका ही एक रनर बन के रन बनाऊंगा. बैट स्ट्रोक आपको मारना है, रन खाली मैं भागूंगा, खाली मैं आपको रन आउट नहीं होने दूंगा 100%. मैं इतना भागने में अच्छा हूँ. और सर आप ही ने तो मेरी अब ये आप ही ने बॉम्बे में मेरी बिल्डिंग जमाई है. ये एक एक्सीडेंट था कमल कांत जी. सुखात में नहीं तो कोई अभ्यंकर मिल जाता, अभ्यंकर नहीं तो महेश नाइक मिल जाता आपको, मगर आपका जाना तो तय था. इशू इज अभी ये जो मैं बात करूंगा अभी, जी, ये एक आर्टिस्ट है जो जिनका मैं भक्त हूँ. मतलब आई लाइक हिम, आई लाइक हिज वर्क्स. एंड ऐसा है ओवरऑल के टेक्सचर्स एंड कलर्स एंड लिटिल acromatic, means there are not too many of colors. If too many colors come, they shout and quarrel with each other. His work, well, I find he sometimes he uses color, but many times he prefers not to use color. And not to use color, for example, one can talk, but one prefers not to talk, is also many times very important thing. I think I will start with his the way in which I have enlisted in my PowerPoint presentation. Of course, कमल कांत जी, मुझे आप एक्सक्यूज की जो मुझे अच्छे लगे उसके बारे में मैंने किया है, और आपको तो आपके हर पेंटिंग और हर स्कल्पचर और हर म्यूरल अच्छा ही लगता होगा. माँ को सभी बेटे गांधारी को उसके 100 के 100 कौरव अच्छे ही लगते थे, बराबर है, या 5 पांडव को अच्छे लगते. तो मैं आपको बोलता करूंगा और ज्यादातर मेरे भी बीच में कमेंट रहेंगी. आई होप एवरीबॉडी, सब लोग मुझे सुन रहे हैं. रोशन, उस स्कल्पचर जो मैंने डाला है, वो स्कल्पचर बहुत मुझे अच्छा लगा था, और जिसमें बहुत सारे इमोशन
है, बहुत सारी स्टोरीज है इसमें। तो इसके बाद आई विल स्टार्ट विथ ये, इसके बारे में तो शायद बता चुके कि वो मास्टर्स डिग्री ड्राइंग और पेंटिंग में पा चुके हैं। बहुत सारे एग्जीबिशन है। जहांगीर आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन के लिए आज तुम बुक करो तो कम से कम 8 साल का वेटिंग है, जहां उन्होंने 13 एग्जीबिशंस किए। 7 टाइम जहांगीर में हुए। ललित कला एकेडमी एक बहुत बड़ी नामचीन चीज है दिल्ली में, वहां भी हुए। जॉइंट एग्जीबिशन हुए, ग्रुप एग्जीबिशन हुए। सिटी देखो, पुणे में किया, उज्जैन में किया, ग्वालियर में किया, भोपाल में किया, न्यू दिल्ली, मुंबई में तो करते रहते हैं। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत है चेहरे, फेसेस। अब ये फेसेस आप देख रहे हो, जिसमें कमलकांत जी आपका भी चेहरा है, और फेसेस उनको बहुत इंस्पायर करते हैं। अब चारों फेस देखोगे, चारों फेस में एक इनोसेंट लड़की का फेस है। इसका एक्सप्रेशन सरप्राइज भी है उसमें, वो हंस भी रही है, यस भी बोल रही है, नो भी बोल रही है। एक नीचे जो पुजारी या भगवान के तिलक लगाए हुआ आदमी है, वो भी हैप्पी है, मगर उसके हैप्पीनेस कैरेक्टर अलग है। जो लेडी जो हंस रही है, लेडी ऐसे हंस रही है कि शायद उसकी सांस केले के छिलके पर से गिर गई। ये हंसने में भी बहुत सारी स्टाइल रहती है। और ये चौथा जो पिक्चर है तो बहुत पॉपुलर पिक्चर है, अहमदाबाद। डरना, डरना क्या होता है? तो ये फेसेस जो है, ये फेसेस हम लोग देखते हैं, लाखों लोग टीवी पे देखते हैं, मगर कमलकांत जी ये एक ही आदमी ऐसा है, फेसेस को चैनलाइज करके उसमें से वो आर्ट बनाता है। सी, ये आर्टिस्ट्री की ये बहुत बड़ी बात है। जैसे महेश जी नाइक जी, उनको बहुत सारे बहुत सारे चीजें देखी उन्होंने स्कूल में, कॉल करूंगा, पर आखिर इनके गन्ने का जो जूस निकला वो अल्टीमेटली आर्किटेक्चर फॉर्म में निकला। तो ये जो कमलकांत जी है, उनका फेसेस, उनका पैशन है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का ड्राइव मारना सामने से, जो स्ट्रेट स्टंप के ऊपर से 90% जाके सिक्सर जाता है, खाली लोगों को देखना है और चिल्लाना है कि ये सिक्सर हुआ, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपका फेसेस के ऊपर उनको बहुत खुशी मिलती होगी, हमको भी खुशी मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है। अब ये देखेंगे इनके जो फेसेस है, ये एगनी भी बताते, हैप्पीनेस बताते, दे आर कंफ्यूज भी है, ह्यूमिलिएटेड है, स्केयर्ड है, गिल्टी है, हैप्पीनेस बताते, इंटीमेसी बताते। मगर जो मैंने फोटोग्राफ्स बताया, फोटोग्राफ में एक्चुअल फोटो था वो इंसान का, जिसको नाम था, जिसको कोई लोकेशन, जिसका कोई वजह था। मगर ये चीज एब्स्ट्रैक्ट में डालना, हुसैन साहब ने घोड़े चरते हुए बताया, घोड़े खाए, मगर घोड़े के फोटो नहीं निकाले। उन्होंने हॉर्सेस की पूरी सीरीज बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अलग चीजें बताई उसमें। तो ये एब्स्ट्रैक्टनेस जो आपने किया कमलकांत जी, सर हुसैन फोर्स, अभी ये एक मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो इसमें 118 इमोशंस है, जो बेसिक इमोशन है फियर, मगर फियर के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, एंगर के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, डिस्गस्ट के कितने, सैड के कितने, हैप्पीनेस के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। ये इसमें से सभी तरीके मेरे ख्याल से कमलकांत जी बता सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। कमलकांत जी, ये आपकी डायरी है, 2013 में आपने ये डायरी बनाई, ये स्केचेस बनाए। ये हर स्केच आप देखोगे तो अलग इमोशन है। तो खाली हमको एक बताना कि कहीं जगह आपने दाढ़ी निकाली है, कहीं दाढ़ी नहीं है, ओवरऑल दे आर सेक्स के बारे में, मतलब मेल है फीमेल, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। स्पेशली आप ये देखोगे, ये इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन है। तो आप, या ये जो रेड आई हो चुका है, या ये, इसके बारे में आप कुछ बताइए ना लोगों को। सर हम लोग जब मतलब लोगों से मिलते हैं, या हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, या हम कहीं पे बैठे हुए होते हैं, और हम चेहरों को देखते हैं लोगों के, तो वो एक मतलब
अपने आप से भी बात कर रहे होते हैं, खुश हैं, दुखी हैं। हम मेरे सामने की सीट पर बैठा हुआ लोकल ट्रेन में एक आदमी कुछ सोच रहा है, कुछ अपने आप से हंस रहा है, कुछ अपने आप से टॉक कर रहा है, तो वो मुझे लगता है कि मैं देखते हुए लगता है मुझे कि ये आदमी एकदम निरपेक्ष तरीके से बैठा हुआ, मतलब ये सोच रहा है कि ये हंस रहा है, अंदर से हंस रहा है, ये दुखी है, तो वो एक्सप्रेशन में पकड़ने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ये और तो उसको ड्रा आपकी करने। आर्टिस्ट्री। हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमारा स्टेशन कब आ गया वो देखते हैं। आप तो शायद इस हिसाब से करोगे तो आप आपके डेस्टिनेशन से आगे चले जाओगे। मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये एक एक कोई कोई जो एक्सप्रेशन है, ये जो ग्रीन का एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही फैंटास्टिक एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन। और मैंने जो फोटो बताया था जो अहमदाबाद रॉयट्स का, जी बहुत सिमिलैरिटी है इसमें। ये जो है ये कितना पीसफुल है। जैसे इन्होंने तीर्थंकर के फोटो जो बताए थे महेश नाइक ने, ये जस्ट एक लाइन आपने यहाँ की है जिससे उसका मूड हो गया कि शांत है और उसके आंखों में कहीं देख नहीं रहा है, वो इंफिनिटी में देख रहा है। ये हर चीज जो है, और कितने एब्स्ट्रैक्ट फेस में बताने। देखो लैंडस्केप तो करते हैं, वाटर कलर पोर्ट्रेट भी मैं करता हूँ, सभी करता हूँ, मगर मेरा में एक माइमिक मैं कॉपी करता हूँ। जैसे नाना पाटेकर ने भी बोला है कि मैं कहीं देखा हूँ और मैं कॉपी जी करता हूँ इसी का। जैसे अरे वो सांबा या जो भी था, वो उन्होंने बताया, अमजद खान ने बताया था कि मेरे यहाँ धोबी ऐसा चिल्लाता था और जी वो हमने कॉपी किया। जी जी आपने कॉपी का तो कहीं रखा ही नहीं है, सर, ये ये स्पॉन्टेनियस है। अनकॉपीएबल है। जब मैं कलर लेके बैठता हूँ अपने पेपर लेके, तब मेरे अंदर वो एक दूरस्थ इमेज रहती है, मतलब डिस्टेंस इमेज, जो अंदर एकदम ट्रांसफॉर्म होती है कि मैं अच्छा कलर आप कुछ। बताइए, हाँ आप आपको कितनी प्राइवेसी लगती है? आप स्टूडियो में अलाउ करते हो आपके फैमिली को कि जैसे डॉक्टर पंडित जो थे पेंटर, वो अपने स्टूडियो में किसी को अलाउ नहीं करते थे, जिनकी आंखें एक उनकी स्पेशलिटी थी। तो आप किसी को अलाउ करते हो? आपको प्राइवेसी लगती है कि आप सरेआम किसी के सामने भी जैसे लैंडस्केप आर्किटेक्ट कर रहा है वैसे सर, करते मैंने हो? कई कॉलेज में, कई स्कूल में, पांडिचेरी के जो स्कूल है उसमें भी मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, हैदराबाद का कॉलेज में डिमॉन्स्ट्रेट किया है। लेकिन जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं देखे या मतलब पास में नहीं हो तो ऐसा लगता है कि बहुत फ्रीडम मिलती है काम करने में। प्राइवेसी एनहांस करती है क्रिएटिविटी को। हाँ, मतलब जब आप अच्छा, ये अकेले हो, हाँ, तो कॉन्शियस नहीं लव रहते। लेटर लिखते हैं लोग, लव लेटर अपने गर्लफ्रेंड को, तो ऐसे हिंदी पिक्चर में कई बार आता है कि लिखा फाड़ डाला, लिखा फाड़ डाला, लिखा फाड़ डाला। जी जी ऐसा आपका होता है कि आपने जो बन लिया वो बन गया, हो गया फाइनल? हाँ सर, ओके, चलो ये आपका मतलब कॉन्फिडेंस है। जो भी, हाँ, मैं मतलब अगली जो भी स्लाइड बना पे रहा हूँ जाऊं। वो फाइनली है। चलो बहुत और अच्छा है यार, दूसरा ये तो सर, मोदी जी जैसा हो गया। मैं स्केच नहीं करता, जैसे आपने जो फेसेस दिखा रहे हैं रफ और उसमें मैंने किसी फाइनल की और हाँ, मतलब डायरेक्ट कलर से स्टार्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ, मतलब नहीं नहीं, उसका ये आउटलाइन नहीं बनाता हूँ। ये ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ी बात मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से नहीं होता है। लोग डायरेक्टली ब्रश टच करके पूरा बनाने का, कहीं भी आपको यहाँ रफ लाइन नहीं दिखाई देगी कि पहले स्केच बनाया कमल कांत जी ने स्केच और फाइनल किया। नहीं बनाता इनके सर, मैं माइंड में वो एक इमेज तरफ है। से शुरू करता हूँ, मैं फिनिश करता जाता हूँ। अगली स्लाइड पे जाऊं मैं? जी 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 आगे, हाँ, ये भी और भी कोई फेसेस है जी इसमें। ये फेस देखिए, ये फेस देखिए, जी ये फेस देखिए। ये मतलब कितनी कम लाइन और कलर्स में, और कोई शार्प लाइन नहीं है, फिर भी दे फेसेस में एक्सप्रेशन बहुत जी ज्यादा जी है। ये जो आपने बनाया ये तो बहुत ही अच्छा फॉर्म है। जैसे आपने उसमें थ्री जी डायमेंशनलिटी डाली है, और ये जो छोटे छोटे जो आपने चारकोल, ये क्या मीडियम है जरा इसके बताइए। और ये जो व्हाइट रखा आपने स्क्रिबलर से किया या कैसे किया, इसको आ, जरा बताइए ना आप मुझे। सर, ये मतलब व्हाइट कलर किया है, ये दिस इज ड्राई पेस्टल ऑन पेपर। ओके। तो ये ड्राई पेस्टल में मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है, तो वो व्हाइट मैंने कलर ही लिया है, मतलब पेपर नहीं छोड़ा है।
गुड। और आपकी सिग्नेचर बहुत ही आपका वो बहुत ब्रांड है, क तेरा, जी जी क ते कर सकते हैं, क्योंकि आप कमल और कांत भी है, तो जी कभी जी क जी क 2 बार लिखिए। अच्छा, ये दूसरा जो बाजू में जो है, जिसमें जो ग्रीन जी है, ये ग्रीन बहुत अजीब है। ये ग्रीन को मैं टाइटल नहीं दे सकता हूँ ना, इसको मैं ऑलिव ग्रीन बोल सकता हूँ, हाँ ना इसको मैं जो मॉस का ग्रीन बोल सकता हूँ। सर, मगर ये ऑलिव ग्रीन ग्रीन है, जैसा, इसके कुछ साथ ऑलिव आपने ग्रीन एक, जैसा बोल सकते हैं। बाद में इसके साथ आपने ऑरेंज क्रिएट किया है। जी और आप ये यहाँ पे कोई महिलाएं होंगी तो ग्रीन के साथ ऑरेंज पहनने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। इस टाइप के आप कॉम्बिनेशन कैसे कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, इसके लिए आपको रियल सैल्यूट है, क्योंकि आपके पास वो कलर को बेंड करने की थैंक आपकी सर, आदत है। थैंक। ये एक्चुअल सर, मैं मतलब काम करने के पहले ये सोचता नहीं हूँ कि इमेज क्या होगी। जब करेक्ट, वो उस पर शुरू करता हूँ तो इमेज अपने आप होती जाती है। करेक्ट। जिससे ये फेसेस है आप दिखा रहे हैं, ये हाँ, मोल्डिंग नहीं है कि मैं एक फेसेस को बना दूं और उसका मोल्ड निकाल दूं। ये एक तरफ से सीमेंट लगाना शुरू किया और वो दूसरे तरफ से वो धीरे 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 फिनिश होता गया, तो ये हर बहुत फेस पर एक अलग एक्सप्रेशन दिखेगा। अनबिलीवेबल है आप जो बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता है, लोग 10-10 बार ट्राई करते हैं, हम प्लान 4 बार चेंज करते हैं और बाद में फाइनल बनता है। फाइनल होते होते मुझे पता है कि ललित कला एकेडमी गोवा का बनता था, तो चार्ल्स कोरिया ने बना हुआ कॉलम तोड़ डाला था जी एक बार। तो इस तरह से हम लोग कीप ऑन जी चेंजिंग इट। जी बट ये जो 6 स्कल्पचर है और ये 7वां जो स्कल्पचर जी है जी बाजू में, इसमें इसमें कहीं सिमिलैरिटी नहीं है। एक औरत के है ये, आपने प्रोफाइल भी बताई, और इसमें एक पीसफुल और बहुत ही अलग टाइप के आपने इसमें एक्सप्रेशन डाले जी। हैं। ये और ये जो टेक्सचर जो है, आप बताएंगे क्या क्या सर, मटेरियल आपने यूज किए इसमें? इसमें मतलब ड्राइंग से शुरू करने का कोई महत्व नहीं है। ये मैंने जो ये होता है जिसको क्या बोलते हैं, बोरे, जिसमें चावल वगैरह आता है, जूट जूट हम्म, हम्म, जूट के टुकड़े कर करके सीमेंट में भिगो भिगो के रख के एक फॉर्म तैयार किया। ओके। मुझे नहीं मालूम है कि उसमें से कैसा निकलेगा एक्सप्रेशन। हम्म, तो उसको जब मैं फिनिश करता गया उस फॉर्म के ऊपर सीमेंट लगा के, जो जूट का फॉर्म है उसके ऊपर फिनिश करता गया, तो वो क्या एक्सप्रेशन निकलेगा मुझे नहीं पता है ये। और वो अपने आप फिनिश होता हुआ आता है, तो वो मैं जो ड्राइंग करूंगा वो पता नहीं कि होगी कि नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छा है। केस है। ये अच्छा है। और ये मेरे ऑफिस में भी, आप मेरी वर्चुअल बैकग्राउंड देख पा रहे हो, तो मेरे ऑफिस में मैंने ये मेरे पास में लगाया है। और मेरे आर्टिस्ट जो बहुत सारे आर्किटेक्ट और कितने सारे बिल्डर्स और बहुत सारे विजिट्स तो करते हैं सर 40 साल बहुत से सालों ऑफिस में। से लगा हुआ, और आपके यहाँ पे बहुत सालों से लगा हर है। एक के लिए ये जो पेंटिंग है, और हर एक को इसके बारे में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत इम्प्रेस होके निकलते, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है। जो जी ओरिजिनल सीमेंट का कलर है वही है वही सर। है, जो ओरिजिनल टेक्सचर है वही है। और जिसकी जो प्यूरिटी है मटेरियल की और थॉट की, वो उसमें बहुत क्लियरली दिख ले कमलकांत जी। थैंक्स सर, थैंक्स थैंक्स। Yes. ये है अभी आपका, एक मिनट, हाँ। सर और ये है, हाँ, यस, ये जो अ, आपने मुझे प्रेजेंट दिया था, जी। और मैंने मतलब मैंने जो आपको इसका प्राइस दिया था वो तो बहुत ही कम था, जैसे एज गुड एज प्रेजेंट ही दिया था मैंने अरे आपको। नहीं नहीं सर, वो उस ये समय मेरे लिए मुझे, बहुत था। और इसमें आप मतलब व्यूअर्स को मैं देख बताना चाहता हूँ जी जी कि इसमें उन्होंने 3 फेसेस है, जी जी। और 3 फेसेस में एक ओल्ड लग रहा है सरदार, हाँ दूसरा एक, यंग लग रहा है सरदार, हाँ और तीसरी कोई फीमेल है जो उनके जी रिलेशनशिप में है। और ये जो पिएटा का जो इन्होंने बताया, ऑफ कोर्स मे बी वेरी एब्सर्ड दिस थिंग, आई मैट बी डूइंग इट कंपैरिजन महेश जी, बट द फोल्ड्स एंड व्हाटएवर दे आर ट्रू फोल्ड्स। एक्चुअल कपड़ा है, वो एक्चुअल कपड़ा है लगाया है। और फिर भी इसकी लाइफ आज कम से कम 20-25 साल ये मेरे लिविंग रूम में है। तो ये जो आपकी जो स्टोरी है, और एक जो एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है कि बाप अपने फोटो की, अपने लड़के की
ही फोटोग्राफ या वो खुद को अपने में देख रहा है, इसकी जरा स्टोरी आप लोगों को सुनाए ना, कि हमको समझे कि आर्टिस्ट के क्या चलन समझ सके। कमलकांत जी। जी सर, ये एक्चुअल मेरे एक सरदार मित्र की वो थी स्टोरी कि वो अपने माता पिता से बहुत दूर रहता था और माता पिता हमारे घर के पास रहते थे, तो वो अक्सर उसके फोटो के सामने जाके बैठ के और उससे बात करते थे। मतलब तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा कि वो अपने बेटे के फोटो से बात कर रहे हैं जो बहुत दूर है, तो उसको लेके मैंने वो बनाया। और इसमें जो ये कपड़े वगैरह फोल्ड है, ये मैंने एक्चुअल कपड़े को सीमेंट के अंदर भिगो के उस पर सैंड अप्लाई करके इस तरह से काम किया है ये सर। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत स्टोरी है इसमें, इमोशंस बहुत ज्यादा है, और इसमें एक इंटरप्रिटेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है। हर एक आदमी अपने अपने इमोशन लेके वो पिक्चर देता है, तो जैसे जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े हैं उनके एक्सप्रेशन कॉमन आदमी को पेनिट्रेट कर सकते हैं। वैसे इसकी जो व्यूअर है ना वो आर्टिस्ट है, और हर एक आदमी को इस टाइप का एक एक्सप्रेशन है जिसको नाम नहीं है। जी हर एक आदमी फादर है, हर एक आदमी सन है, हर एक आदमी में कोई विमन है। और इसका जो कंपोजिशन है, बेसिक कंपोजिशन भी मैं जब बेसिक डिजाइन एस्पेक्ट से भी बोलूँ तो ये बहुत अच्छा है। और ये जो फोकल पॉइंट आपने जो क्रिएट किया है वो तो बहुत ही अच्छा है। बंगाली में उसको लोग बोलेंगे वाह कितना अच्छा है ये, एब्सोल्युटली गुड। हम लोग आगे के इस पे चले अभी। अब ये जो फेस है जी ये आपका काफी सारा, आपने शायद 7-8 साल ये फेस आपने यूज किया है जी फीमेल के लिए, जी मैं सच बोल रहा हूँ? तो ये किसका फेस है? इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइप के जो फेस है ये सबसे तो शुरुआती आप काम था सर। ओके। ये मतलब दिल्ली के जॉन दयाल के पास है। हम्म जब मैंने 92 में मिड डे से नौकरी छोड़ी थी हम्म तो उन्होंने मेरा एक काम ओके, खरीदा था जो अब उनके घर पे लगा हुआ है दिल्ली में। बहुत ही अच्छा है, टेक्सचर्स भरपूर है इसमें, और एक दिल दहलाने वाला कुछ है इसमें। हाँ, ये सर मेरा ये बिल्कुल शुरुआत 100 था जब मैंने इस मीडियम को इस्तेमाल करना शुरू किया था। ओके। तो ये बिल्कुल एकदम शुरुआती काम है। उसके बाद मेरा 94 में ललित कला एकेडमी में एक शो लगा था जो मैंने पूरा रिलीफ में लगाया था। बराबर है। उसके बाद 99 में मैंने जहांगीर में लगाया था जो पूरा शो शोल्ड हो गया था। और उसमें से एक आपने देखा होगा कि मैंने एक वो बनाया था जूते सीने वाला आदमी, हाँ हाँ, वो आपने भी शो में देखा था। देखा होगा। यस। हाँ, तो उसमें जूते ये ओरिजिनल लगाए थे मैंने। नहीं, मगर एक बताऊं जी कमलकांत जी, जो लता मंगेशकर की आवाज सुनता है उसके 14वें साल में वो आज भी निकाल नहीं जी सकती है वो। तो आपके अर्लियर डेज में आपने जी जो जी किया वो एब्सोल्युटली अनकंपेरेबल है, और रॉनेस जो उसका जी है जी। वो बहुत लुभावना है। तो सर वो ये जूते जो देखिए मैंने, इसमें हाँ भी, हाँ ये जी भी जो बोलिए। है जिसकी जुड़वा बहन ही है वो, हाँ एक लंबा सा फेस है, और इसमें एक बाजू में बॉटल है और एक पिस्टल लगाया हुआ है। इसकी क्या स्टोरी हो सकती है, मुझे बताइए ना। ये सर जेसिका लाल का मर्डर हुआ था दिल्ली में, तो मतलब मुझे लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए, करेक्ट। तो मैंने इसका टाइटल दिया था प्लेटेड वुमेन। हाँ हाँ, वेरी तो गुड। एक तरफ से गोली चल रही है, एक तरफ बोतल रखी हुई है और प्लेट के अंदर एक स्त्री बैठी हुई है। हाँ, वो मतलब आजकल ये बहुत चल रहा है कि स्त्रियों को एक कमोडिटी समझा जाता है, वो आपने एक प्लेटर में बता के जी जी एब्सोल्युटली वो बात बता दी। एब्सोल्युटली ग्रेट। एक एक आपकी जो पेंटिंग जो है, जो मैंने जिस हिसाब से आपने बताया उसमें से जी सिलेक्ट जी। किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फीस थी कमलकांत जी। अरे सर अब ये देखो आप 3 डायमेंशन में आ गए, 3 डायमेंशन में भी सिमिलर फेस आप कंटिन्यू कर रहे जी हैं, और ये बहुत बड़ा एक रॉक फॉर्म है जिसमें आपने बहुत ही पिक्चर्स सर इतने ये सारे डाल स्कल्पचर दिए। मेरा नहीं है सर, ओके, ये मेरे एक तो स्टूडेंट इसमें का है, बहुत सिमिलैरिटी मेरे है। स्टूडेंट का है। और इसके बाद
बारे में आप क्या बोलोगे? हाँ, ये सर कर रहे थे तो उसने कहा कि फिगर डालता हूँ, मैंने कहा फिगर डालो चलो, तो उसने इस तरह से क्रिएट किया। एक अलग आदमी खड़ा था इसके साथ, वो आपका स्टूडेंट होगा, करेक्ट? तो आपके स्टूडेंट्स भी मतलब आपको मार्क ऐसे मांगे, जैसे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं हाँ जी ऑलरेडी। जी जी। ये देखिए, अब स्पेस को भी आपने आपके हाथों में ले लिया है। ये स्कल्पचर, और ये अडानी अब शांतिग्राम और में ये, लगा है अहमदाबाद में। हाँ हाँ, वो इसकी मटेरियल क्या है? ये सर व्हाइट मार्बल है। ओके, बाप रे, और कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि एक बाजू में जो फोटोग्राफ शायद सबको दिख रहा है कि आप क्रेन से उसको इंस्टॉल कर रहे हाँ तो हैं, सर बहुत हैवी तो काफी सारे है। टेक्निक और काफी सारे जी जेसीबीज जी और इस तरह से कोई हैंडल करता है। जैसे एक फीमेल को बताओ कि मेरे गले का हार बताने देती है तो कैसा देखती है कि भाई तोड़ दिन में डालेगी। तो आपने तो इतना बड़ा आपका जो स्कल्पचर है, तो यहाँ कहीं से टूट भी जी। जाता तो आप कितनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं कि एक 10 दिन के बच्चे को आपने जेसीबी को लटका दिया। आपको कैसे कैसे लगा होगा तब? नहीं नहीं सर, नीचे भी आदमी है, उसको ओके, इंस्टॉल करने के लिए नीचे आदमी है कहीं। नहीं नहीं, वो बहुत ही अच्छा हुआ है और इसका बैलेंसिंग भी काफी प्रॉपर हो चुका है। जी जी, और ये बहुत पसंद आया था लोगों को वहाँ। बहुत पसंद आया, मतलब मुझे भी पसंद आ रहा है इसमें। बहुत ही अच्छा है। और ये जो बीच में जो जो विंडो बनी है, जी जिसको हम जी लोग बोलते हैं पिक्चर विंडो, जो उसकी खुशी मिलती है, ये देखिए। अब ये जो पिक्चर है और ये जो आपका फॉर्म है, जी इसमें कहीं फिगरेटिव वर्क नहीं है, प्योर जी एब्स्ट्रैक्ट है। प्योर एब्स्ट्रैक्ट में आपने ये टेक्सचर्स बनाए हैं, टेक्सचर्स में यहाँ कट जी दिया है, यहाँ पे एक कुछ खुद फिगर बनाई है। और ये जो पूरा एब्स्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हो, जैसे फेसेस बना रहे हो तो आप सेमी एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हो, अब तो आप टोटल एब्स्ट्रैक्ट में आ गए हो। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट करने में क्या खुशी मिलती है? आपको डर नहीं लगता कि भाई ये लोगों को समझेगा ही नहीं? फिगरेटिव वर्क बहुत बिकता है, ये वर्क के बारे में आपका सर क्या मैं कहना है एक कि स्टोरी व्हेन यू बताता शिफ्टेड हूँ। टू एब्स्ट्रैक्ट? 2008 में मेरा जहांगीर में शो था, तो जी, वो पूरा फिगरेटिव था। तो ओके, मैंने उसमें 20 काम एग्जिबिट किए हाँ थे, हाँ, जिसमें से मेरे 14 वर्क सोल्ड। ओके, 20 काम में से 14 काम सेल हो गए फिगरेटिव। हाँ तो हाँ, मुझे एक ये लगा, कॉन्शियसनेस हुआ कि कहीं मैं पॉपुलर आर्ट की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ जो सेल होता है। तो 2008 के बाद मैंने चेंज किया और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किया, जिसका मैंने हम्म, 2011 में म्यूजियम में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की गैलरी में लगाया था शो। हम्म। तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट था सर। नहीं, मगर ये स्विच ओवर बहुत टफ है। हाँ नाइक जी, आपको बताता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग यू इन कॉन्वर्सेशन। आपने Yeah. पिकासो के पेंटिंग बताए, क्योंकि Yeah. पिकासो और इवन वैन गो ऑल्सो, उन्होंने इस टाइप की आर्ट मास्टरी की थी 14वें 8वें साल में, जो काफी फिगरेटिव एंड काफी रिप्रेजेंटेटिव था। मगर अल्टीमेटली पिकासो जंप्ड इनटू क्यूबिज्म एंड ही वेंट इनटू लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। सो पता नहीं आर्टिस्टों को एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बहुत सारा इंटरेस्ट आता है। नाइक, महेश नाइक जी, आप क्या बता बोलोगे इसके बारे में? Sir, Picasso, when he was very young, he actually bet, मतलब he defeated his father first, Picasso, and उनको ऐसा था कि उनको वो रूल्स ब्रेक करना था, और इसीलिए वो पर्सपेक्टिव की रूल्स ब्रेक करने लगे इन पेंटिंग्स on that. And he was going with the trend, what was happening, that isms was happening, the cubism, and that's how he was trying to get closer to cubism and more abstract painting. So this was Picasso's idea about the painting. But Van Gogh is like an impressionist. Van Gogh was always impressionist, but he always was very enlightened about the color. So whatever depression he has, but whenever he used color, he was always very vibrant in using those color, and he had a superb knowledge of color. Even if you see the Starry Night and the beauty of that, what I mean to say, like he showed all the stars in spiral shape, and now we have such telescope to see the star that they
actually revolve spiral, the neutron star, like they revolve spiral. And as an artist that time he was able to show that star in spiral shape was something enlightened one. So I see them that of course they are very like two are different, and I love both, but I love Van Gogh more than Picasso. Next up, We love uh, Kamal Khan ji also, सर and next up, Yes, let's go to yes. his, yeah. मैं एक बात हाँ, कहना बोलिए। बोलिए चाहता आप, हूँ, मैं एक बात हाँ कहना चाहता हाँ हूँ बताइए ना। कि पिकासो या हाँ वैन बोलिए गॉग सर। ये दे आर फियरलेस आर्टिस्ट। यस, अभी क्या होता ट्रू है सर, आर्ट में कि आपका एक फॉर्म पॉपुलर हो गया और वो मार्केट में चल गया, वही आर्टिस्ट चलाओ। उसको 20 साल तक चलाता है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं यस, करेक्ट। करता, उसको लगता है कि ये सेल हो हाँ, रहा है, ये दिस इज यस, पॉपुलर आर्ट, पॉपुलर फॉर्म। आई एग्री टू। तो यस, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो 20 साल 30 साल तक एक ही फॉर्म पे काम करते हैं, उसको लगता है कि उनको डर होता है कि अगर मैंने ये फॉर्म चेंज किया या कुछ चेंज किया तो मैं इस फील्ड से गायब हो जाऊंगा या मार्केट से यस, अलग हो जाऊंगा। यस। ऐसे तो जो बैकग्राउंड में फेयरलेस आर्टिस्ट है वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ। सर वही मैं बोलना चाहता हूँ, यही काम है कि जो आर्ट फॉर्म होता है वो आदमी पे डिपेंड होता है। इफ मैन इज स्ट्रांग, आर्ट फॉर्म इज स्ट्रांग। जी वो आर्टिस्ट काफी स्ट्रांग थे, डेयरिंग थे, दैट्स व्हाई देयर आर्ट वर्क इज वेरी स्ट्रांग। जी इट इज वेरी मच जी रिलेटेड टू पर्सनालिटी। मैं नेक्स्ट करेक्ट। स्लाइड पे मूव होता हूँ। ये जो है कमलकांत जी जी, इसके बारे में क्या बोलना है? मैं इसको तो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा फिगरेटिव काम है, बट विच इज आल्सो सेमी एब्स्ट्रैक्ट, बट इसकी लोकेशन और ये बहुत ही बहुत पावरफुल लग रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कुछ बता सकते हो आप? सर, ये अडानी शांतिग्राम के मेन गेट पे लगाया है और ये वास्तु के आधार पे बना हुआ है। ओके। इसमें से सुबह शाम 3-4 घंटे आग निकलती है, मतलब ओहो, गैस पाइपलाइन लगी है अंदर से हाँ, और जो ये है, ऊपर उसमें से आग निकलती है। ओके, तो वो अडानी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे बोला कि वास्तुशास्त्री ने बोला कि एक फॉर्म क्रिएट करो जिसमें से मतलब फायर जैसा निकलेगा। तो मैंने ओके, ड्राइंग किया तो उनको बहुत पसंद आया और उस वास्तुशास्त्री ने भी उसको क्लियर किया। तो ये मैंने ये भी white माउंट आबू marble में है। जाके ये इसको इस पर काम किया सर। ये भी व्हाइट मार्बल ही है सर। हाँ, एकदम व्हाइट मार्बल है सर। बहुत ही अच्छा है ये। और हमको तो अभी पीओपी और मोल्डेड फॉर्म देखने की आदत है, तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या है, मगर व्हाइट मार्बल में जो जी जी दिखेगा और जो पास में दिखता होगा, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ आपके जी सभी के लिए। जी 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 ये एक है ये एक है जिसमें अब बहुत सारी ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। ये एक फ्लोरल ज्योमेट्री है, दिस ये इज एक राउंड ये है, सर अगेन आपने माय थोड़े स्टूडेंट्स से भी वर्क सर। ओके, ये इंटरेस्टिंग काम है जलंधर ये। का एक आर्टिस्ट थे हाँ, बलजीत सिंह, करेक्ट। उसको वो मतलब कॉलेज में पढ़ रहा था, उसको मैंने बुलाया तो हाँ हाँ, उनको वेस्टेज मार्बल हमारे पास बहुत था तो हमने उसको भी दिया। तो जो करेक्ट। उसमें फॉर्म था उसी से अंदर से उसने निकाला सर। ये जो है इसी टाइप का एक और एक फॉर्म मैंने देखा था आपके गैलरी जी में, जी बहुत अच्छा था हाँ, वो मेरा स्टूडेंट ही सर। वो। हाँ हाँ, हाँ, ये अच्छा, वो आपका दिस इज माइन। ये आप क्यों खुश है इतने? आप बिक गया इसके लिए खुश है? बहुत अच्छा है ये, वेरी गुड। बोथ ये सीरीज है ये या सेंट पता नहीं, स्टोन में बना हुआ है सर। मगर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जो फोल्डेड ज्योमेट्रीज जी है जी ये बहुत अच्छे है। ये जो है ये फॉर्म भी अच्छा है जिसमें ग्रूव्स है, और एक जो बैलेंस कहते हैं, जैसे हम लोग अलाइड डिजाइन में या बेसिक डिजाइन में जी स्टूडेंट्स उसे काम करते हैं, उनको बैलेंस पाना मुश्किल हो जाता है, मगर ये काफी सारा एक्सपेरिमेंटिव है और प्योर एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो ये सर मतलब चेंज करते रहना चाहिए कि करेक्ट, मतलब आपको जो अच्छा लगता है उस समय वो करें। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कहीं लैंडस्केप में लगा था मैं फिगरेटिव ही लगाऊं, मुझे लगता है कि यहाँ ओके, एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लग सकता है तो मैं वो करूंगा, क्रिएट करूंगा। ये सर 27 फुट का फॉर्म है। बहुत बड़ा फॉर्म है ये। हाँ, मोर देन और 27 फीट।
बहुत बड़ा है और पूरे ओरिजिनल टेक्सचर से इसमें। और यहाँ पे ये अजीब है यार, ये मेरे को तो ऑब्लिक्स वॉब्लिक्स जो बने थे 4000 साल पहले, उस तरह से ये कहाँ इंस्टॉल हुआ, और ये इसके बारे में कुछ ये तो बताइए। सर हसमुख भाई पटेल को बहुत पसंद था, आर्किटेक्ट जो, हाँ हाँ, हाँ जिन्होंने स्टॉक अहमदाबाद के एक्सचेंज फेमस, बनाई है, स्टॉक एक्सचेंज बनाई, जो बिल्डिंग बनाई उसके आर्किटेक्ट, राइट? हाँ हसमुख भाई पटेल, जिन्होंने ये हम्म। अ, जो रिवर फ्रंट किया है वहाँ का अहमदाबाद का हाँ हाँ। वगैरह, बहुत सीनियर आर्किटेक्ट, बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे, हम्म। तो उनको बहुत पसंद था ये फॉर्म सर। नहीं, ये बहुत अच्छा है। और ये छोटी छोटी जो जहाँ पे आपने डिटेलिंग किया हुआ है, ये जी जी, काफी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये। ये और स्टोन के मैं अंदर चाहता सर हूँ ये ड्राइंग मैंने निकाला है, ग्राइंडर से हम्म। स्टोन पे ड्राइंग करके फिर उसको किया है अंदर अंदर ग्रूव, और बीच बीच में वो करके अंदर स्टोन किया है, पतला स्टोन। अ, अभी ये देखिए आप, अ, ये भी फॉर्म है, जी यहाँ जी, पे बहुत सारा आपने इंटरलॉकिंग शेप्स बना दिए हैं। और मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एस्थेटिक्स है। और जो आर्किटेक्ट्स है, जो हम सॉलिड फॉर्म के साथ खेलते हैं, खेलते मतलब हम यूज करते हैं, इनके लिए बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है। कि बिल्डिंग के बीच में होलो, इसके बारे में आपका कुछ कहना है? बिल्डिंग के हाँ, बीच में होलो, ऐसा कुछ लगना चाहिए। बहुत अच्छा। और काफी इंटरेस्टिंग है ये। इसके बारे में कुछ हिस्ट्री अडानी कॉम्प्लेक्स में है कि और कहीं है ये? नहीं, ये सर एक बंगले में लगा है वहां पर अहमदाबाद में। और ये स्टोन क्या होगा, सैंडस्टोन है? ये सर धांगध्रा स्टोन है, अच्छा, धोलपुर धांगध्रा, धांगध्रा सैंड स्टोन, धानक। ओके, और ऊपर वाला मार्बल है। ऊपर वाला व्हाइट मार्बल है सर। बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिसमें आप जिस हिसाब से आपने ये स्पेस अंदर डाल के काफी सारा एक अच्छा गार्लैंड जैसा बना दिया, दिस इज एब्सोल्युटली मार्वेलस। सर आर्किटेक्चर में भी अगर ऐसा हो कि पूरी बिल्डिंग में से होलो दिखे कहीं कहीं से, तो बहुत अच्छा लगे, हाँ लैंडस्केप हाँ। दिखे पीछे से। मैं ध्यान में रखूंगा आपके। और अब ये जो है, जी जी, एक विंग है ये, हाँ, एक जिस तरह से ये विंग ऐसे उड़ रहा है, काफी सारा फोर्स हाँ, है इसमें। और ये सर करीब तेरह इसके चौदह साथ फीट का दो है, स्कल्पचर भी है। मगर ये स्टोन जो है, रेड ये स्टोन सर। टेराकोटा लग रहा है, मगर ये क्या है, क्या रेड स्टोन है? हाँ रेड और स्टोन है नीचे सर। कौन सा, ये कौन सा? हाँ, नीचे बहुत एक अच्छा है। रैंडम पत्थर लिया था, उसके ऊपर हमने उसको रॉड से वो किया तो था, कोई भी इंस्टॉल किया था। लहराते हुए फ्लैग से ये बहुत पावरफुल है। जी, बहुत ही अच्छा बना है ये। ये, अच्छा, आप अभी ये जो बनाया आपने, जो राइट हैंड साइड में है, जहाँ पे मेरा अभी लेजर है, जी जी, ये आप म्यूरल में कैसे घुस गए? मतलब बिल्डिंगों में म्यूरल बनते हैं, बिल्डिंगों में हम लोग मोबाइल्स बनाए, बिल्डिंगों में उसके हाइट एनलाइटन करने के लिए कुछ टाइप की ग्राफिक्स ऐड सर करते हैं हम मेरी लोग इसमें। 1980 में, नहीं सर 2000 में, सॉरी, हाँ हाँ। रेजा काबुल से मुलाकात हुई। ओके। तो रेजा काबुल ने मुझे एक काम दिया, खार में एक लॉबी में मुझे कुछ 15 फीट का कुछ काम करना था। हाँ हाँ। तो मैंने, उस समय मोबाइल भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने 3 फीट का काम किया था, फिनिश किया था। हम्म। और रेजा साहब पीछे से आके देखा उन्होंने, शाम को उनको फोन आया, उन्होंने 2 काम और दे दिए। तो ओ, इस तरीके से रेजा काबुल की मैंने करीब 40-50 बिल्डिंग में काम किया हुआ सर। क्या बात है! रेजा कपूर आज बड़ा नाम है, और उनके काम के लिए भी वो जाने जाते हैं। उनकी सर 50 बिल्डिंग में, कमर्शियल, स्विमिंग पूल के पास, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, लॉबी में, क्लब हाउस में, बहुत बहुत जगह काम किया सर। ये एक पेंट हाउस में था। अच्छा, ये जो पेंटिंग है जिसके बारे में मेरे को कहना है कि ये जी, जो ग्रीन है, ये आपका फेवरेट है। ग्रीन के साथ आप रेड भी डालते हो, और इसको मैंने क्रॉप करके यहाँ डाला, तो ये भी काफी बैलेंस्ड है। जी जी, और इतना बैलेंस होते हुए भी आपने यहाँ इतना बड़ा लंबा ग्रीन पैच डाला, जी,
जी और वाइट कलर है, ये बहुत अमेजिंग है यार। ये भी है, इसको भी 3 डायमेंशनलिटी है। ये सर अब दिल्ली में ये मेरा ऑयल है, शो एक्रेलिक है, क्या है ये? ये दिल्ली में मेरा शो था सर हाँ ललित हाँ। कला एकेडमी में। तो इसके लिए 2 बायर, एक ने 2 लाख रुपए में खरीद लिया था इसको। तो दूसरी क्लाइंट आई, बोले इसके मैं 2.5 लाख रुपए देती हूँ। ओके। मतलब उनको इतना अच्छा लगा और हमने इसको रिजेक्ट करके गेट पे लगा रखा था गैलरी के। ये बहुत लेकिन वो अच्छा है, बहुत पावरफुल है ये। सर ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है कुछ कुछ, वही तो। मतलब जब आप इन्वॉल्व रहते लगातार एक काम में तो कुछ आता है। यहाँ पे भी एक विंडो दी है आपने, जी जी और इसके वजह से ये पावरफुल बन गया है। और ये जो स्टोन है, वो टेक्सचर है जो मेरे ख्याल से तुम्हारे क्रेयॉन से बनाया होगा। नहीं नहीं सर, ये और ये एक्रेलिक भी है। जो है एक्रिलिक है वो। हाँ ये पूरा एक्रेलिक कलर है सर। और ये जो बनाया है ब्लू कलर है, ये ये ब्लू विंडो तो सर, बहुत अच्छा विंडो ब्लू तो है। ये वही है, पेस्टल कलर है। हाँ हाँ हाँ। मगर ये जो विंडो करना, पेंटिंग में स्पेस डालना, ये एक टफ काम है जो आपने कर चुके हैं इसमें। जी जी जी। अब ये देखिए, ये भी बहुत सारा है। इसका ये जो ब्लू है वो बहुत बहुत अलग ब्लू है, और इसको रिक्रिएट, और ये जो ब्लैक है और येलो है, ये गोल्डन लगने लगा है ब्लू की वजह से। ये एब्स्ट्रैक्ट, पूरा एब्स्ट्रैक्ट रखा, या मतलब कभी फिगरेटिव था उसको एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया आपने? नहीं सर, फिगर नहीं सोचा मैंने उसमें। वो फिगर प्योर अगर एब्स्ट्रैक्ट। दिख रहा है तो अपने आप से आ गया है। ओके गुड, बहुत अच्छा फिगर है नहीं ये। सोचा था, एब्स्ट्रैक्ट ही सोचा था पूरा। अब ये आपके कोई म्यूरल्स है, जी जी इसमें कितने सारे स्टोन्स है, कितने सारे कलर्स है, और ये जो स्टोन्स जो है, ये स्टोन के कलर की लाइफ कितनी है? 1 लाख जी। साल कोई चेंज नहीं होगा। इसको न कोई नेरोलैक पेंट है, न इसको आईसीआईसीआई पेंट है। ओरिजिनल टाइल का कलर, ओरिजिनल स्टोन का कलर। आप 50 बिल्डिंग साल बाद 50 भी साल देखेंगे के तो बाद, वैसे ही लगेगा। बिल्डिंग 50 साल के बाद गिर जाएगी, मगर इसका कलर सेम रहेगा साहब। ये आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और जी जी कितने सारे कलर्स, और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एरिया बहुत ही आपने अच्छी बनाई है, और ये इसका कोलाज है। एंड आई अंडरस्टैंड, लाइक ये एक के साथ उसका जो इनले वर्क करना है, इट मस्ट जी बी जी। वेरी टीडियस जॉब। इसकी इसकी साइज सर क्या होगी 9.5 फीट कमलकांत जी? बाय 5 फीट, ओके, बहुत अच्छा है ये। मतलब विद फ्रेम। अब ये जो है, ये पूरा टेराकोटा है। ये महेश नाइक के कोई भी बिल्डिंग में लग जाएगा, इतना परफेक्ट रेड कलर उधर मैच हो रहा है। बिल्कुल। हाँ सर, इसका इसकी कुछ तो बैकग्राउंड इसकी बताइए। स्टोरी जो मैंने बताई थी आपको कि जो मंदिर में ये जो भी बनाते हैं तो वो औजार तेज करने के लिए ईंट में औजार तेज करते हैं हाँ अपने हाँ ईंट के ऊपर। हाँ तो उसमें हाँ। छेद छेद हो जाते हैं। ओके, ये जो है वो। हाँ, तो उस ईंट को फेंक देते हैं बाद में। तो वो ट्रक ट्रक से फेंकने ओके जा रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे दे दो ये। तो मैंने उस ओके, सारे ईंट के टुकड़ों को अरेंज करके एक म्यूरल बनाया। बहुत अच्छा। मतलब आपने ट्रक के टुकड़ों से आप ट्रक ही खरीद लिया, ऐसा समझो ना आप, है ना? सर मतलब ये आर्टिस्ट को जो डिजाइन वैल्यू बोलते हैं ना लोग, कि एक में जो आर्टिस्टिक वैल्यू डालने से उसकी जो वैल्यू बढ़ जाती है, हाँ ये भी एक है जिसमें जी इस टाइप के एक्सरसाइजेस मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ कोलाजों के। मगर अभी ये स्टोन है, ये एक स्टोन है, ये ब्लू कितना लुभावना ब्लू है, ये ऑरेंज है, और ये बहुत ही अच्छा बना है। ये कहाँ पे है बम्बई में ये ये बम्बई सर में नहीं जी? सर, अहमदाबाद में अडानी शांतिग्राम, ओके। अडानी के ये प्रोजेक्ट ये में। फॉर्म भी अच्छा बनाया आपने, और इसमें लिमिटेशंस बहुत था आपके पास, क्योंकि 2 डायमेंशन में से आप निकल नहीं सकते हो बाहर। जो हाँ पीसेस अवेलेबल है जी उसी में जी से करना है। जैसे घर में गृहिणी रहती है कि भाई आज घर में क्या सब्जी है, तो 4 सब्जी उसी में से बनाना है, तो उसकी आर्टिस्ट्री तो जी। कम नहीं होती कुछ। इस हिसाब से आपने इसको बना दिया है, सर बहुत मटेरियल ही अच्छा। ये तो सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मटेरियल अगर आसपास भी पड़ा हुआ है, उनके वेस्टेड टाइल पड़े हुए हैं, जो भी है उसमें से उठा के लगा लिया। करेक्ट, क्योंकि पोएट जो है, जो कवि है, उसको शब्दों की अभी कमी तो सर जो पड़ती गोल नहीं है गोल ना लगाए कभी। हैं वो मैंने रेती में पत्थर से हाँ। उठा उठा के लगा लिए, रेती के। अच्छा, इसके बारे में बताइए। हार्डन वर्क है, एंड
ऑलवेज लाइक द वर्क हाफ डन, क्योंकि उसमें एक चेंज करने की पॉसिबिलिटी है. जैसा मेरा इंटीरियर कभी मैं पहले, अब तो बंद किया, करता था, तो लास्ट डे में जब पेंट का स्मेल आ रहा है, पीओपी का स्मेल आ रहा है, कर्टन लग रहे हैं, उस टाइप का जो फीलिंग है, दैट आई लाइक यूज्ड टू. क्योंकि अब ये पता था कि अब ये फॉसिल हो जाएगा, और ये घर में मैं जो रात को 2 बजे भी जा सकता हूँ, 3 बजे भी जा सकता हूँ, वो घर में मुझे बेल के जाना पड़ेगा परमिशन लेके. तो ये जो हाफ डन जो भी है, ये बहुत ही वाइब्रेंट है, ये कलर से. मगर आप अभी मुझे मत बताना कि ये भी कलर के स्टोन ही है, ये तो शायद आपने नहीं कलर ही सर, किया होगा. सब टाइल ओहो है हो, ये। अच्छा, ये ये जो, बहुत पावर. हाँ, जो बड़े टाइल आते हैं 2 बाय 4 फीट के, ये इस तरह के टाइल, बहुत तो अच्छे हैं. ये इसके पीछे स्विमिंग पूल है, हाँ हाँ. और ये तो डेड वॉल आपने, दिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस पे कुछ करना चाहिए, तो स्विमिंग पूल से भी अच्छा बन गया है आपका, है ना? तो ये करीब 25 फीट 30 फीट का बहुत होगा ही था, अच्छा ज्यादा ही है ये. होगा। इसका फाइनल स्केच कभी मुझे भेज देना आप. जी जी। और अब ये भी एक है जिसमें आपने कोटा स्टोन का पूरा, मतलब कोटा ही कोटा है सब जगह, ग्रीन इधर, करेक्ट? एम आई सर राइट? ये कोटा स्टोन की वॉल बनी हुई थी, हाँ हाँ. उसमें से हमने कुछ स्टोन निकाल दिए, जैसे 2 स्टोन, जैसे इसमें देखेंगे आप ओके. हाँ हाँ. कि हमने बीच के 2 स्टोन ओके. निकाल दिए पूरे, और ये बना, तो उसपे जो डेप्थ आई उसके अंदर हमने क्रिएट किया उसको। बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल है. और ये भी एक है जिसमें शायद आपके जो काम करने वाले हैं, जी जी और ये जस्ट शायद आपने लगाया है, क्योंकि हमारे सीमेंट के स्टेन देख रहे हैं मुझे. जी। और इस टाइप से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है. और ये क्या है, ये मुझे सरप्राइज है. और ये स्टील क्या है बीच में जो शाइन कर रहा है? सर ये स्टील का, ये एक तो वॉश बेसिन लगा रखा है बीच में, वेरी जो गुड. बहुत कितना फाइबर का क्रिएटिव आइडिया है. फाइबर का वॉश बेसिन उठा के मैंने लगा दिया, हाँ और हाँ. बीच में स्टील का बॉल बहुत रहा। अच्छा. और ये शाइनिंग वाले क्या है ये? सर ये टाइल वगैरह ही है, बाकी सब। बहुत अच्छा बना है ये. हाँ और ब्लैक बॉर्डर के बिना भी मुझे अच्छा लगता, मगर पता नहीं क्लाइंट की कभी कभी कुछ नीड्स हाँ, रहती है, मतलब बॉर्डर उनको होना चाहिए. सर वहां पे अडानी शांतिग्राम में मैंने करीब 90 से ज्यादा म्यूरल्स किए, तो हाँ. उन्होंने कहा कि बॉर्डर एक जैसा ले लो सबका, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये आपकी लेटेस्ट जहांगीर की एग्जीबिशन है जी जिसमें आप आर्किटेक्ट्स दिख जी रहे हैं, जी। हर्षद भाटिया भी है, आपका चंद्रशेखर कानिटकर है, जो आजकल केवल 5 स्टार होटल्स ही उनके सर बनाता है. हर्षद भाटिया के साथ मैंने करीब बहुत स्पीच किए हैं. 10 साल मगर पहले सर। हाँ जी। ये शो कैसा रहा, और ये जो स्कल्पचर है, ये उसका मेन आइकॉन था, तो इसके बारे में कुछ सर बताइए ना कानेटकर साहब कमलकांत जी. के साथ मैंने पहले काम किया है, और अहमदाबाद के एक प्राइड होटल में रिसेप्शन पे मेरे 3 हेड लगाए थे बड़े बड़े उन्होंने, अच्छा. हम्म. तो उस समय से उनसे संपर्क है, और इसमें से भी बहुत सारा काम उन्होंने मेरा खरीदा है। ओके. जी जी जी। ये बहुत अच्छा हुआ है. ये शो बहुत सक्सेसफुल रहा सर, मतलब 27 वर्क सोल्ड। करेक्ट. बहुत अच्छा रहा. ये जी उसी जी। के स्कल्पचर से, ये इटालियन मार्बल है, जो इटालियन मार्बल के भी आपने फेसेस किए हैं. ये सर पहली बार ये भी मैंने इटालियन किया मार्बल है। के फेसेस. अभी लॉकडाउन के 2 दिन पहले लकीली मैं सिलवासा पहुंच गया, हाँ हाँ. तो इटालियन मार्बल सिलवासा ही में मिलता है, कहीं नहीं मिलता, और करेक्ट. कि ब्लॉक्स आके वहां पे कटते हैं, तो वो जो साइड का हिस्सा बचता है थोड़ा बहुत, 2 फीट 3 फीट 1 फीट, वो वो भी स्क्रैप में उठा महंगा के ले मिलता आया। होगा. जी। ये भी है. ये सब और सड़क से उठाया हुआ है पत्थर। वो बोलते हैं ना, हिंदी पिक्चर में डायलॉग रहता है कि सड़क से उठा के कहाँ पहुंचा दिया तुझे, है ना? और अब पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं, हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लें. जी जी। अब ये आपका घर है, ये घर है कि आपका आर्ट गैलरी है? एक मिनट। ये सब व्यूअरों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बड़ौदा में इनकी पेंट हाउस में ऑलमोस्ट आर्ट गैलरी बन गई है, और कोई कोई स्कल्पचर्स
तो बहुत ही अच्छे हैं, इसके बारे में घंटों हम लोग बात कर सकते हैं। ये उनका लैंडस्केपिंग है, इधर इन्होंने एक वाटर कलर लैंडस्केपिंग भी किया है। ये एक बहुत बड़ी कॉलम है जिसका इसका 500 किलो वजन है। और ये जो पेंटिंग है, यहाँ मैंने साइड में बताया, ये बताइए बस, आज ये आपका लास्ट स्लाइड है, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि ये ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर, व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर ये बहुत ही लुभावना और बहुत पावरफुल बन गया है। ये इसके बारे में कुछ बताइए ना आप। सर मेरा 4-5 साल पहले एक शो था अहमदाबाद में, तो मुझे लगा कि मैं इस बार पेंट भी नहीं करूंगा, कार्विंग भी नहीं करूंगा, लेकिन शो करूंगा। ओके। तो साइड पे उठे हुए तार, कोल, चारकोल का टुकड़ा, कंक्रीट, वो सर आप उसमें देखेंगे कनोरिया सेंटर के शो में, उस पे मैंने सर ना पेंट किया ना कार्विंग किया, और पूरा शो तैयार किया सिर्फ असेंबल करके। तो उसमें से एक पीस है ये सर। बहुत अच्छा है, ये बहुत पावरफुल है जी। जब आप इसको देख के आप बोर हो जाओगे तो मुझे दे देना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, एनी टाइम सर, एनी टाइम। और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद सब पार्टिसिपेंटों को जो आपने हमारा वार्तालाप सुन लिया और मुझे टॉलरेट भी किया, क्योंकि इतना अच्छा महेश नाइक का काम के बाद इस टाइप का काम बताने का हमने रिस्क उठाया। बट शायद मैं कमलकांत जी आपके बहुत सारे भीतरी चीजें निकाल पाया हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू कमलकांत सर, and Sukatma sir, thank you very much. Lot of Yeah.